بغداد شہر جس کے گلی کچوں میں ایک خستہ حال مکان تھا اور اس مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ جس کا نام یوسف تھا سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد میں ایک وبائی مرض پھیلا اور کئی لوگ اس کی زد میں آئے۔ یوسف بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کمزور، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کی برداشت اور صبر جواب دے چکے تھے۔ یوسف اب بچوں کو روتا دیکھ کر رسوئی میں گیا کہ ان کے کھانے کو کچھ ڈھونڈ سکے، لیکن اب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تھا اور تمام برتن خالی تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی روزگار کی سوچو، یوں بیکار بیٹھنے سے تو ہمارے بچے مر جائیں گے۔ بیوی کی باتیں سنی تو یوسف بولا، میں نے زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، لیکن بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اب میں کام کاج کے قابل نہیں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ بیوی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان تھا اور گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے ایک لمبی رسی تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ یوسف کی باتیں سنی تو بیوی نے کہا، آج تو کھا لیں گے، کل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا، کل تک کافی وقت ہے اور کل کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کافی دیر تک گلی کچوں میں صدا لگائی اور آخرکار اسے ایک گاہک مل گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا اور کہا، میں اس رسی کے بدلے تمہیں 1 دینار دے سکتا ہوں۔ یوسف کہنے لگا، اس کی قیمت 1 دینار سے زیادہ ہے، چند ہی سال پہلے میں نے زیادہ قیمت سے خریدی تھی۔ اب گاہک سمجھ چکا تھا کہ یوسف اپنی کسی ضرورت کے تحت رسی فروخت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہنے لگا، میں نے جو قیمت لگائی ہے وہی مناسب ہے۔ اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو رسی میرے حوالے کرو اور 1 دینار لے لو، ورنہ جاؤ کوئی دوسرا گاہک تلاش کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا، یوسف نے مجبور منظور کر لیا اور رسی 1 دینار میں فروخت کر دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ اچانک اس نے راستے میں 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ یوسف آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان نے بوڑھے کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے، اور وہ بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یوسف نے اس جوان سے کہا، اے جوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس سے ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا اس جوان کے ہاتھوں مجبور اور پریشان تھا۔ کہنے لگا، 1 درہم کی خاطر، صرف 1 درہم کی خاطر یہ شخص مجھے قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھجوا سکے۔ اب تم بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی کہ میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن ایک معمولی سی رقم کے لیے قید خانے چلا جاؤں؟ یوسف نے اس بزرگ کی باتیں سنی تو سوچنے لگا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو؟ اگر یہ بوڑھا قید خانے چلا گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کا خرچ کون دے گا؟ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور جوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو جوان، یہ رہا 1 دینار، اور اس بوڑھے کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ جب نوجوان وہاں سے رخصت ہوا تو بزرگ بھی سنبھل گیا اور یوسف کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگا، تمہیں اللہ اس کا 100 گنا اجر دے۔ بزرگ کی دعائیں سنتے سنتے یوسف بھی وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے یوسف اب یہ سوچنے لگا کہ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹنا ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی تھا کہ اس نے غربت کے باوجود ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے یوسف گھر پہنچ چکا تھا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بلکہ وہ رسی جو گھر سے لے کر گیا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم خالی ہاتھ کیوں ہو اور رسی کا کیا ہوا؟ یوسف نے تمام ماں بیوی سے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، واقعی تم نے عمدہ کام کیا ہے اور ایک بوڑھے کو قید خانے سے نجات دلائی ہے۔
लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना जायज नहीं। अब अपने बच्चों को किस तरह बहलाओगे, कहां से खिलाओगे, और इस शहर से कौन यहां आएगा ताकि हमारे बच्चों का पेट भरे? वह कहने लगा, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बातें तस्लीम करता हूं, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। अब जो होना था वह तो हो चुका। तुम्हारे रोने धोने से हमारा एक दीनार वापस नहीं आ सकता, इसलिए इन बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए सोचो कि आप क्या करें। शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। वह जानता था कि उसकी बीवी की बातें कड़वी जरूर है, लेकिन दुरुस्त है, इसलिए सोचने लगा कि क्या करे और क्या ना करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर कभी उधर फिरा, लेकिन उसे कोई काबिल फरोख्त चीज नजर ना आई, इसलिए परेशान और नाउम्मीद होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछोर के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, मुझे इजाजत दो ताकि मैं इसे बेच सकूं। बीवी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, लेकिन तुम इस नए बिस्तर से भी उन्हें महरूम करना चाहते हो। यूसुफ ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए अहम बात यह है कि इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? उसकी बीवी ने जब देखा कि इसकी नजर में इस बिस्तर के सिवा और कोई चीज नहीं है तो आंसू बहाने लगी और फरियाद करते हुए बच्चों को बिस्तर से उठाया और अपने संगीत खावनग्लुंग लो। सिर्फ इतना याद रखना कि इसे सस्ते दामों न बेचना, ताकि चंद दिन हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। यूसुफ के पास कहने के लिए अब कोई बात ना थी, इसलिए उसने अपना सर उठाया, बिस्तर को लपेटकर कंधे पर रखा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता रहा और चलता रहा और आखिरकार शहर के उस मैदान में पहुंच गया जहां कई किस्म की नई और पुरानी चीजों की खरीद और फरोख्त होती थी। यूसुफ ने बिस्तर को फरोख्त करने के लिए जब आवाजें लगाई तो चंद ही खरीदार उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने बिस्तर को उलट पुलट कर देखा और उसमें 100 तरह के ऐब निकाले और आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार आ निकला जिसको वह बिस्तर पसंद आ गया। उसने इस बिस्तर की कीमत दरियाफ्त की। यूसुफ कहने लगा, 10 दीनार खरीदार को इस बिस्तर की मुतलूर ना थी, और जब उसने 10 दीनार का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दीनार जाया करेगा। यह कहने के बाद वह खरीदार आगे बढ़ गया और यूसुफ से दूर होने लगा, लेकिन वह भी इसके तकब में लपका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म ना करें, मैं अपनी जरूरत की वजह से इस बिस्तर को इससे भी कम कीमत पर फरोख्त कर दूंगा। आखिरकार उसने यह बिस्तर 3 दीनार में फरोख्त किया और रकम लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। वह रास्ते में सोचने लगा कि अपने बच्चों के लिए क्या खरीदे ताकि वह खुश भी हो जाए और उनका पेट भी भर जाए। इतने में उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाजें सुनाई दी। वह वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा था और उससे इल्तजा कर रही थी कि मुझे हकीम के पास ले चलो, मुझे हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुढ़िया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, अम्मा जान, मुझे जाने दे, मैं आपके इलाज के लिए रकम कहां से लाऊं। यूसुफ ने जब उन मां बेटे का माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े, यही कूचा उसकी आखिरी उम्मीद थी, और उसकी ख्वाहिश थी कि इसे हर कीमत पर फरोख्त करें ताकि उसके बीवी बच्चे कम से कम एक वक्त के खाने से महरूम ना रहे। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि कोई भी खरीदार ना मिला। सूरज अब मुकम्मल गुरूब हो चुका था और अंधेरा छा चुका था, इसलिए वह थका हारा गली कच्चों में अकेला रह गया। फिर वह एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वह काफी देर बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में कैसे घर जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। इसने अपना सर झुका लिया और बदस्तूर सोचता रहा कि इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। यह मछली फरोश भी यूसुफ ही की तरह मजबूर और तंग दस्त था, इसलिए वह भी इसी जगह आकर बैठ गया जहां वह बैठा हुआ था। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल सुनने और कहने लगे और एक दूसरे के गमगुसार बन गए। मछली फरोह कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, आओ कोई ऐसा काम करें कि तुम इस कूद से छुटकारा हासिल करो।
और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है, मैं तुमसे कूजा ले लेता हूँ और तुम मुझसे मछली ले लो और अपने घर जाओ, ताकि कम से कम आज की रात तो तुम्हारी बीवी और बच्चे अपना पेट भर सके। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहने लगा, हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मैं बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कूजा ले लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्सा में आ गई। वह अपने इन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वह आ भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल से जल्द दरवाजा खोल दिया गया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वह मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। अगरचे यह मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कूज को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वह कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वह कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके तबादला में यह मछली ली है। उसकी बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कूजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कूजा को फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कूजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, उस कूजा को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी अब दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वह कूद से भी हाथ धो बैठे। वह अपनी जगह से उठी थाल और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वह इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, यह क्या है जो मछली के पेट में चांद की तरह चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाएं देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती, ए औरत, यह तो कीमती मोती है। यूसुफ के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी बीवी और बच्चों ने याद इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाए। अब वह सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जौहरी ने अपनी दुकान भी ना खोली थी कि यूसुफ उसके दरवाजे पर मौजूद था। जैसे ही दुकान खुली तो उसे वो मोती देकर उसके बदले बेअंदाजा रकम वसूल कर ली। इस दफा वह खाली हाथ ना था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठरी दिरहम और दिनार से भरी हुई थी। यूसुफ ने इस रकम से घर की जरूरियत, बच्चों के लिबास और नए बिछौना खरीद लिए। काफी अरसा के बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली वाक़या हो चुकी थी। जब चंद दिन गुजर गए तो यूसुफ के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। ऐसा ही एक वाक़या यूसुफ के साथ दोबारा पेश आया। एक दिन शाम से थोड़ी देर पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूसुफ ने दरवाजा खोलकर देखा। एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और वह साहिब खाना का इंतजार कर रहा था। यूसुफ भी अब कोई फकीर न था, बल्कि साहिब माल था। दरवेश को देखकर वह बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ ले आए। दरवेश ने यूसुफ को अपना तारुफ कराया और कहने लगा, नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंगदस्ती हूं। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो, ताकि अपनी परेशानी से मैं निजात पा सकूं। यूसुफ ने जब यह बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, कुछ भी हो, मैं इस दरवेश की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह एक परेशान हाल और फकीर था। फिर वह कुछ कहे बिना तेजी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने जूं ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे और मुस्कुराने लगा और कहा, वाकई दुरुस्त है, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई दिन पहले लोगों की जुबानी तुम्हारी तारीफें सुन रखी थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन ना था कि तुम ऐसे इंसान दोस्त साबित होगे। अगर तुम सच पूछते हो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि देख सकूं कि लोगों की जुबानी जो बातें सुनी थी वह दुरुस्त है या नहीं।
दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मैं कई सालों से गोशाम हूं और इबादत इलाही में मसरूफ हूं, लेकिन मुझे ऐसा मर्तबा नहीं मिला जिस मर्तबा पर तुम फायज हो चुके हो। दरवेश ने इतना ही कहा और दोनों हाथ उठाकर यूसुफ को दुआएं देता वहां से रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, राय देना चाहे तो कमेंट करें और हमारे चैनल YM वॉइस को सब्सक्राइब करें।